Students, now we are going to continue from the topic which we have done in our previous lecture. In our previous video, I have told you that energy density is nothing but given by the ratio of potential energy per unit volume, or it is given by the ratio of potential energy and volume simply. So the potential energy is given by this expression, half CV square, and the value of our volume is nothing but equal to AD, where A is an area of plate and D is a distance between plates. Now C can be written as equal to A epsilon naught by D. C can be written as equal to A epsilon naught by D. And what is the value of V? V is nothing but equal to ED. पहले वाले प्रीवियस वीडियो की रेफरेंस में मैंने बताया था कि जो हमारा पोटेंशियल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रिलेशन से, यानी कि बोथ आर रिलेटेड बाय द रिलेशन V इज इक्वल टू ई डी. E is our electric field and V is our potential, and D is the separation between the two plates. We have done that we have two plates. One plate is having positive density, another plate is having negative density. They are separated by distance D. E is the electric field related to those plate, V is the potential, and D is the distance between them. So on solving this, we will obtain 1 by 2 multiplied by A epsilon naught by D multiplied by E square D square by AD. By simple calculation, by cutting the numerator and denominator terms, we will got 1 by 2 of epsilon naught E square. So this much is our expression of energy density. That energy density is nothing but given by equal to 1 by 2 epsilon naught E square. This is nothing but our definition of electric field, energy density, that is the potential energy per unit volume. Moving ahead to the next topic, that is what is the loss of energy between the two capacitors on sharing charge. Next topic is loss of energy between two capacitors on sharing the charge. What is the loss of energy between two capacitors on sharing the charge? When the two capacitors are sharing charge, then how much loss of energy occur or how the loss of energy take place? कैसे loss of energy होती है और कितनी energy lost होती है? That is our topic. कैसे consider करना है इसे? Consider two bodies, body A and body B. कंसिडर टू बॉडीज, दो बॉडीज कंसिडर की हम लोगों ने, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है. लेट Q1 इज अ चार्ज ऑन दिस बॉडी ए. बॉडी ए पर जो चार्ज है वो Q1 है. V1 इज द पोटेंशियल ऑफ बॉडी ए. बॉडी ए का जो पोटेंशियल है V1 है. इन सिमिलर वे Q2 इज द चार्ज ऑन द बॉडी बी and V2 is the potential of body B. So in this way we have imposed the four new characters in this expression, in this derivation, in this article, which are that Q1 V1 are the charge and the potential on body A, and Q2 V2 are the charge and potential on the body B respectively. We have taken them in such way that the potential on first body is greater than the potential on second body. कि पहली बॉडी पर, बॉडी ए पर पोटेंशियल ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सेकेंड बॉडी. अब पहला केस क्या है, दैट वी हैवंट कनेक्टेड दीज टू बॉडीज. हमारी जो दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, अभी तक हमने फर्स्ट केस में उन दोनों को कनेक्ट नहीं किया. व्हेन वी हैवंट कनेक्टेड द टू बॉडीज, देन टोटल चार्ज ऑन देम, टोटल चार्ज उन पर कितना रहेगा? टोटल चार्ज ऑन देम इज नथिंग बट द सम ऑफ चार्जेस ऑन बोथ द बॉडीज. अभी हमने उन्हें कनेक्ट नहीं किया, तो जो टोटल चार्ज होगा दोनों बॉडीज वो कितना होगा? ये टोटल चार्ज कितना रहेगा दोनों बॉडीज का? अगर मैं प्लस कर दूंगी टोटल के लिए, Q1 इज इक्वल टू C1V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2V2. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द चार्ज बिफोर कनेक्टेड देम, जब हमने उन्हें कनेक्ट नहीं किया. Now, what is going to happen if we connect them? क्या होगा अगर हम उन्हें कनेक्ट करेंगे? We have two bodies, one body is having high potential, another body is having low potential. कनेक्ट करने का मतलब क्या है, या कनेक्ट करने से क्या होगा कि पोटेंशियल फ्लो होगा, या चार्ज जो है हमारा फ्लो होगा एक ऐसी बॉडी से जिसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है, उस बॉडी तक जिसके पास पोटेंशियल कम है. यानी कि मैंने कहा जो मेरी ए बॉडी है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है,
और जो बी बॉडी उसका पोटेंशियल कम है, लिखा है मैंने V1 ग्रेटर देन V2. सो व्हेन वी कनेक्ट बोथ ऑफ देम, जब इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो चार्ज है इस बॉडी का इस बॉडी के पास जाएगा. और आई कैन राइट ऑन कनेक्टिंग देम the charge will flow from A to B टिल कब तक जाएगा, तब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता. पोटेंशियल बिकम्स इक्वल. एग्जाम्पल V1 क्या है भाई, अगेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग V1 पहले का पोटेंशियल है, V2 दूसरी बॉडी का पोटेंशियल है. जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल या चार्ज जो है हमारा वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा. कब तक जाएगा, उस स्टेज तक जब तक कि दोनों बॉडीज इक्वल पोटेंशियल एक्वायर नहीं कर लेती. वो चार्ज फ्लो की प्रोसेस ही रुक जाएगी जब दोनों बॉडीज इक्वल पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल V को एक्वायर कर लेंगी. सो बिफोर कनेक्टिंग देम द टोटल चार्ज इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. Q is nothing but equal to C1 V1 plus C2 V2. After connecting them, the charge Q become equal to C1 V plus C2 V, C1 plus C2 into V. So we have got the two expressions for the charge. जब कनेक्ट नहीं किया तो V1 V2 पोटेंशियल था, कनेक्ट करने के बाद दोनों के पास एक स्टेज पर बोथ आर गोइंग टू एक्वायर द सेम पोटेंशियल विच इज V. So before connecting them and after connecting them we have got the two expressions and we can equate 1 and 2. दो इक्वेशंस आई हैं चार्ज की, क्या आप उन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट नहीं कर सकते? डेफिनेटली वी कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम. एंड व्हेन वी इक्वेट बोथ ऑफ देम what is going to happen? When we equate both of them, what is going to happen? Let us consider that thing. Thus, on equating both the equations, we will obtain C1 V1 plus C2 V2 is equal to C1 plus C2 into V. We have obtained the two equations for charge, and on using the two equations we have obtained this expression, and by using this expression we will obtain nothing but V equal to this expression. So we have obtained the expression for potential. Now we are going to have the expression of energy. Before connecting them, the value of energy is given by half C1 V1 square plus half C2 V2 square. This much is the value of energy when we haven't connected the two bodies, body A and body B. And after connecting them, the value of energy is given by equal to half C1 V square plus half C2 V square. कुछ नहीं भी वही है जैसे कि चार्ज वाले एक्सप्रेशन में V1 V2 आए थे जब कनेक्ट नहीं किया था, व्हेन वी हैवंट कनेक्टेड देम, और जब उन्हें हमने कनेक्ट किया तो हमारे पास पोटेंशियल एक ही आ गया यानी कि V की वैल्यू उसने एक्वायर कर ली. इन सिमिलर वे फॉर द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ CV स्क्वायर. कैसे है, वी हैव प्रूव फॉर इट. तो इस तरीके से वी हैव ऑब्टेन्ड द टू एक्सप्रेशन. बिफोर कनेक्टिंग देम हमारी एनर्जी की क्या वैल्यू रहेगी, जब हमने उन्हें कनेक्ट कर दिया तब हमारी एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी. अब कनेक्ट करने की वजह से एनर्जी लॉस कितना हुआ ऑन कनेक्टिंग देम और ड्यू टू कनेक्टिंग देम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी लॉस. एनर्जी लॉस की क्या वैल्यू आई उसको निकालना है. चलते हैं. ये E1 है भाई, जब कनेक्ट नहीं किया तब कितनी एनर्जी थी, और ये E2 है कि जब कनेक्ट कर दिया तब कितनी एनर्जी हो गई. 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. 1/2 C1 प्लस C2. V की जगह आप यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो? क्या अभी तक हमने इस आर्टिकल में कहीं पर भी V की वैल्यू को कैलकुलेट किया है? डू एवर एट एनी पॉइंट वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ V? कहीं पर भी हमने V के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया है भाई. ये वाली क्वेश्चन में किया था चार्ज वाले को लेके.
तो v की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हम लोग ले लेंगे क्योंकि हमें v का एक्सप्रेशन पता है। सही है, आगे चलते हैं। एनर्जी लॉस क्या हुआ, पहले बॉडीज कनेक्टेड नहीं थी, हमने दो बॉडीज को कनेक्ट कर दिया, दोनों बॉडीज ने एक कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर लिया। इस सारी प्रोसेसिंग की वजह से क्या कोई एनर्जी लॉस हुआ, अगर हाँ तो उसकी क्या वैल्यू है। एनर्जी लॉस इज गिवन बाय इक्वल टू E1 माइनस E2। एनर्जी लॉस इज गिवन बाय इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 का एक्सप्रेशन क्या था, हाफ C1v1 स्क्वायर प्लस हाफ C2v2 स्क्वायर माइनस E2 हाफ C1v1 स्क्वायर प्लस हाफ C2v2 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू C1v1 प्लस C2v2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। This much is the expression of energy loss. Now from this we are going to continue with our next thing, how we can evaluate, how we are going to solve for this expression, कैसे इसको हम solve करेंगे। What is the method of solving this particular equation? We have 1/2 C1v1 square plus 1/2 C2v2 square minus 1/2 C1v1 plus C2v2 whole square by C1 plus C2। कैसे, C1 plus C2 एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर टर्म से कट गया, कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से। ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, इस एक्सप्रेशन में C1 plus C2 पहले वाला देखिए पेज, उसमें रेफर कीजिए, कैंसिल हो गया। आगे क्या होगा भाई इसके अंदर, अब वी हैव और वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट दिस पर्टिकुलर थिंग बाय यूजिंग अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम। इधर नीचे C1 प्लस C2 है तो हम लोग इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे। कैसे, C1 प्लस C2 हाफ C1v1 स्क्वायर प्लस हाफ C2v2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 बन जाएगा माइनस 1/2 C1v1 प्लस C2v2 होल स्क्वायर। क्या किया, C1 प्लस C2 का एलसीएम ले लिया, C1 प्लस C2 को क्या किया, एलसीएम ले लिया है। इसके बाद क्या करना है, अभी जो भी टर्म्स हैं सिंपली ओपन दोस टर्म्स, ये सब ब्रैकेट्स को खोल दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। एक चीज़ याद रखना कि C1 प्लस C2 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लिकेशन में है, सिर्फ इससे मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। एलसीएम में ये C1 प्लस C2 एलसीएम लेने पर इट हैज़ कम विद बोथ द टर्म्स, दोनों टर्म्स के साथ वो आई है, सो इट इज़ प्रेजेंट विद बोथ द टर्म्स। सो ऑन टेकिंग द एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए, जो चीज़ें कटती हैं काट लीजिए। सिंपल कैलकुलेशन करने पर ऊपर वाली टर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगी, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, कुछ नहीं है अपने आप करना, डायरेक्ट नहीं लिखना, माइनस 2 C1 V1 C2 V2 बाई 2 C1 प्लस C2। 2 जो है वो एलसीएम से ही आएगा। जब आप एलसीएम में ले चुके हो यहाँ पे, जब आप सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करके कैंसलिंग करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ये टर्म इवैल्यूएट हो जाएगी, बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से इवैल्यूएट हो जाएगी। अब भाई क्या बचता है, ऊपर से C1 C2 कॉमन ले लो फ्रॉम टॉप टर्म, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू C1 प्लस C2। C1 C2 इसको क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन है डेल्टा एच का या एनर्जी लॉस का। एनर्जी लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डेल्टा एच। क्या किया अभी, C1 C2 कॉमन ले लिया है, C1 C2 कॉमन लेने पर अंदर की जो टर्म बची उसको कुछ नहीं किया, V1 माइनस V2 को होल स्क्वायर कर दिया। With this we are done with this. We have to consider a simple case of this. As your homework, you have to complete this in your notebooks. You have to, this all the steps of this article should be clear to you. Don't waste your time, again be regular with videos. Thank you.